Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my topic that is based on digital electronics, which are came under electrical fourth semester, in which we start the lecture series with unit number 3. According to that, I start with lecture number 17. Today I I shall cover I would be I will cover the topic detailed description about latch and flip-flop, and the other one is combination circuit and sequential circuit. First, start with your flip-flop and latch. What do you mean by latch? Before start the topic of your flip-flop, flip and flop means flip means 1 and flop means 0. It means all the digital electronics should be based upon one of the most versatile circuit, that is called your flip flop. Flip flop is work like a switch, like on that it indicate 1 at the output, if off that indicates 0 at the output. Before study the flip flop, we are came under with your latch, and before starting the topic of a latch, you will be very well known about what do you mean by combination circuit and sequential circuit. In sequential circuit, flip flop is a sequential circuit in which your output should be depend upon your present, your past and future value, present, past and future values. But in case of combinational, in which the output depends only on present input at that particular time. So flip flop depend upon your past value, so that's why its name is a memory element, as see in my notes, in my slides. It is a basic memory element. It can store one bit. It means it can store either 1 or 0. I can say that it is a basic memory element, means it can depends upon your past value. So the past value can get in your flip flop function, during flip flop function through memory element. So that's why we can say that the flip flop is a sequential circuit, or we can say sequential circuit. It has two output which have complementary to each other. So as per the figure of the flip-flop, in which having two output, one is Q and other is Q bar. So both of the output are complementary to each others. It have two stable state. So that's why its name is bistable multi vibrators. Before the topic of your flip-flop, we are came under with your latch. So the latch is like a flip flop but not a flip flop, because in which we not apply any clock. So लैच और फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस क्या है? लैच को बनाने के लिए हम नैंड और नोर गेट यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? नैंड और नोर गेट. But the main difference between your latch and flip flop, the latch maintain its output state till whenever any event occur on the input at that particular time. इट मीन्स लैच तब तक आउटपुट स्टेट पे रहेगा जब तक इनपुट के अंदर कोई इवेंट अकर नहीं हो जाता. But the flip-flop change state at every instant of time with reference to clock. So that is the main difference between your latch and flip-flop. Latch के अंदर clock नहीं होती और flip-flop के अंदर इनपुट पे clock होने के कारण the output change itself sequentially after a specified period of time, because the clock changes its duration from on to off, and the second time from off to on, then again on to off, it changes itself. So that's why the output changing itself from on to off and off to on periods. Clear? ठीक है. तो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी the today study that what do you mean by latch and its circuit and its analysis with the help of gates, and also study your flip-flop with circuits with and its truth table analysis, and the characteristics tables and excitation table are studied in my later part of the
video. So today I start with the topic that is latch. So that is a basic circuit of your latch. We have seen that we are using two NOT gate for making latch. So in that case, the output of first NOT gate connected to the input of first one, and the output of second node get connected to the input of first one. So in that case we can use in that case that is also a latch, but that is not proper work due to one input is present at that particular time. So that problem should be recovered by the use of node gate instead of, we can use NAND and NOR gate instead of NOT gate. So we are seeing that using NOT gate, the problem is it have only input, only one input. So we use NAND and NOR gate instead of NOT gate. Clear? The flip flop is not only used for storing one bit, but is also used for frequency divider. तो उसने ये बोला है कि हम इस नोट गेट के अंदर एक इनपुट होने की वजह से कई बार कुछ प्रॉब्लम्स अकर्स हो जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नोट गेट की जगह या फिर क्या यूज करेंगे, नैंड या फिर नोर. As we were very well known about the topic of your gates, the gate we are using several gates, either AND or NOT, NAND or NOR. NAND and NOR are the universal gate. Through this we are making other gates. So with the help of NAND and NOR gates we are making, one is called your OR, one is called your AND, and other one is called your NOT gate, and same as for your NOT gate. So NAND and NOR gates are universal gates, and it also help for making other circuit like flip flop. So मैंने पहले भी बताया आपको कि हम इसको बनाने के लिए या तो NAND गेट यूज करेंगे एंड NOR गेट. अगर वो चीज हम लैच के अंदर यूज कर रहे हैं, लैच के अंदर ओनली क्लॉक प्रेजेंट नहीं है, देखा सर्किट के अंदर कहीं क्लॉक है आपको, ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होगा, आपका क्लॉक होगा. और लैच के अंदर जो आपकी आउटपुट है तब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक आप इनपुट के अंदर कोई इवेंट अगर नहीं करवा देते, ठीक है. लेकिन फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, इनपुट पे क्लॉक प्रेजेंट होने के कारण आपकी जो आउटपुट है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद अपने आप चेंज होती रहेगी. क्लियर? ठीक है. तो हम आज डिटेल स्टडी करेंगे लैच एंड फ्लिप फ्लॉप with its truth table analysis. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट विद योर लेस और लेस यूजिंग नैंड गेट. जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर नैंड गेट का सर्किट शो कर रखा है, वही सर्किट हम किसके लिए यूज करेंगे, नोर गेट. सो इस सर्किट के अंदर we can use NOR gate instead of NAND gate. Then its name mention SR latch using NOR gate. But some changes is occur. In that case we are mentioned verbally, or you can say orally told about you. So we are start with our topic, that is SR latch using NAND gate. Here we're using two NAND gate, and one having input S and other is having R. S for set and R for reset, and having input Q and Q bar. Actually that is Qn plus 1, that is Qn plus 1 bar, because we are mentioned Qn plus 1. Plus 1, it means that came under your future state, and the future state come with the help of your past state in case of your flip flop. As in my starting of my lecture I told about that the flip flop is depend upon your past and present value. So that's why we doing the analysis with the help of your past value in case of your latch, either flip flop. So in some books here we mention Qn plus 1 and Qn plus 1 bar. So you can see that how it is work. That is, we are mentioned a two table here, that is A B, that is truth table for your end node NAND gate. When both are 0, 0 into 0 0, आगे bubble लगा हुआ है, so that's why output is 1 in case of your NAND gate. Same as for 0 into 1 0, output is 1, 1 into 0, output is 0, then again output is 1 for your NAND gate, and for 1 into 1 for 0.
क्लियर? तो हमने क्या किया फर्स्ट केस के अंदर आपने क्या बोला है कि आपकी जो आउटपुट है वो आपकी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो हम मान के चलते हैं कि आउटपुट जो है वो आपकी क्या है पास्ट वैल्यू की जो पहले पड़ी हुई आउटपुट पे मान लो एक मेमोरी एलिमेंट है, तो कई बार मेमोरी एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, कई बार प्रीवियस वैल्यू को उठाने के बाद ही आपका नेक्स्ट रिजल्ट काउंट होता है। तो हम इस केस में कुछ प्रीवियस वैल्यू मान के चलेंगे। सपोज़ मान लेते हैं कि आपका Q जो है वो 1 है। और ये वाला क्या है आपका 0 है। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग इन वेरी सिक्योरली वे दैट इज़ 1 एंड 0। अब आपका जो ये वाला 0 है, आपने इसको 1 माना है और इसको 0 माना है। जब ये वाला 0 आपका इनपुट पे जाएगा, इनपुट पे हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग ये 0 है और ये वाला 0 है। तो यहाँ 0 था, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है। ये 0 आपका यहाँ गया। यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या प्रेजेंट है 0 है, क्योंकि हम टू टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस मान के चल रहे हैं। तो 0 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। तो न्यू आउटपुट आपकी क्या आई है 1। अब इस न्यू आउटपुट को आप इनपुट पे लेके जाइए। देन 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिलेगा 1। अब आपकी यहाँ पे भी न्यू आउटपुट 1 आई है और यहाँ पे भी न्यू आउटपुट क्या आई है 1 आई है। अब इसको एक बार दोबारा घुमाएंगे और दोबारा रोटेट करेंगे। दैट 1 इंटू 0, इन फर्स्ट केस 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिलेगा 1। ये गया 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। इट मीन्स दोनों स्टेट्स आपकी प्रीवियस वैल्यू की हेल्प से जो न्यू आउटपुट आई है उसको आपने एक बार फिर रोटेट किया, लेकिन आउटपुट आपकी क्या आई बोथ आर 1। सो इन फ्लिप फ्लॉप वी आर मेंशन हियर वन आउटपुट इज क्यू एंड अदर इज क्यू बार। इट मीन्स अगर 1 आता दूसरा 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा ये केस क्या हो गया इनवैलिड, क्योंकि दोनों क्या आई हैं आपकी 1 आई हैं। सो दैट इज नॉट अकर इन योर फ्लिप फ्लॉप से that condition is not occur in your flip flop state. So that's why we name mention here that is invalid state in case of your flip flop. अगर आपको जो मैंने इनपुट्स एज्यूम की हैं उनकी हेल्प से जो आउटपुट नहीं आई हैं, अगर उसमें कुछ डाउट लगता है तो आपको नेक्स्ट केस से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ध्यान में रखना आपका नेक्स्ट केस के लिए S0 है। सेकंड केस मान के चल रही हूँ मैं। S0 है, R1 है। क्लियर? S0 है, R1 है। फिर से अगेन हम मानेंगे ये 1, ये 0। ये 0 है, ये भी 0 है। 0 इंटू 0 0, यहाँ न्यू आउटपुट क्या आई है आपकी 1। अब जो ये न्यू आउटपुट 1 आई है उसको हम इनपुट पे लेके जाएंगे। ठीक है? और इनपुट पे आपका R क्या है? सेकंड केस में 1 है। ठीक है? 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिलेगा 0। इट मीन्स न्यू आउटपुट यहाँ 1 आई, यहाँ क्या आई 0। ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। आप चाहे लिख लीजिए पेन से, ये वाला 1 है और ये वाला 0 है। सेकंड केस के लिए ये वाला 0 है और ये वाला 1 है। उसका उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। अगर ये 0 1 है, ये 1 0 है। ठीक है? तो आप इस 0 को लेके गए तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 0 है। 0 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है? अब इस नए वाले 1 को दोबारा फिर इनपुट पे लेके जाओगे। इनपुट पे क्या प्रेजेंट है 1। 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स आपको प्रीवियस आउटपुट की हेल्प से नई आउटपुट क्या मिली है 1 एंड 0। इट मीन्स क्यू आपका क्या आया है 1। यहाँ इस ट्रुथ टेबल के अंदर मैंने क्यू बार मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर ये 1 है तो क्यू बार क्या आ जाएगा आपका 0। इट मीन्स अगर आपका एस और आर ये 0 है और ये 1 है तो आउटपुट आपकी 1 एंड 0 आई है। इट मीन्स क्यू एन प्लस 1 दैट इज 1 एंड क्यू एन प्लस 1 बार दैट इज 0। अगेन मैं दोबारा फिर क्लियर करती हूँ आपको इसी केस को। मैंने क्या किया कि आपका सेकंड केस मान के चली हूँ ये 0 है और ये वाला 1 है, और हमने पास्ट वैल्यू को ज्यूम कर लिया ये वाली 1 है और ये वाली 0 है। अब सेकंड केस ये 0 ये 1, ये 1 ये 0, तो ये 0 यहाँ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है। 0 इंटू 0 0, ये क्या मिलेगा आपको 1। अब रिमेंबर दिस थिंग इन वेरी एक्यूरेटली वे, यहाँ 1 है, ये 1 इनपुट पे गया और इनपुट पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है सेकंड केस के अकॉर्डिंग 1। तो 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। अब नई आउटपुट यहाँ 1 आई है और यहाँ क्या आई है 0 आई है। ठीक है? अब इस 0 को आप इनपुट पे लेके जाओगे। इनपुट पे ऑलरेडी एस पे क्या प्रेजेंट है 0 और यहाँ पे भी क्या आया आपका 0। 0 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिलेगा 1। अगेन न्यू वैल्यू 1। इस 1 को दोबारा इनपुट पे लेके गए। आर पे 1 है, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स एक बार दोबारा रोटेट करने के बाद भी आपको ये 1 मिला और ये वाला 0। इट मीन्स आपने प्रीवियस से नेक्स्ट
जब एक बार घुमाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आई है, ये 1 और ये वाला 0। यहाँ आपने क्यू बार मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर आप मेंशन करते हैं तो ये क्यू आपका 1 है तो क्यू बार क्या आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 एंड क्यू एन प्लस 1 बार भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमने पास्ट वैल्यू की हेल्प से क्या वैल्यू निकाल ली आपकी नेक्स्ट वैल्यू। सेम एज फॉर योर 1 एंड 0, आपने रिमेंबर दिस थिंग, ये 1 है और ये वाला 0 है। थर्ड केस के अकॉर्डिंग ये वाला, ये 1 ये 0, ये वाला 1 और ये वाला 0, ये 0 भी यहाँ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1, ये 1 यहाँ गया, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। इट मीन्स बोथ न्यू आउटपुट्स आर 1 विद S1 एंड R0। अब ध्यान में रखना, आपका थर्ड केस में S1 है R0 है, आपने प्रीवियस जो वैल्यू मानी थी उसके अकॉर्डिंग नई वैल्यू दोनों 1 आई है। तो जब ये 1 इनपुट पे जाएगा थर्ड केस के अकॉर्डिंग, आपका इनपुट पे पहले से 1 प्रेजेंट है, 1 आपका यहाँ से चला गया, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0, ये 0 गया दोबारा से फिर इनपुट पे 0 आ गया, आर पे क्या प्रेजेंट है 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। इट मीन्स एक बार रोटेट करने के बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, ये वाली 0 और ये वाली 1, तो उसका रिवर्स हो गया। ये 0 है तो क्यू बार क्या आएगा आपका 1, और यू कैन से क्यू एन प्लस 1 अगर 0 है तो क्यू एन प्लस 1 बार इज इक्वल टू 1। सो इन दैट केस दैट शुड बी रिवर्स ऑफ योर सेकेंड केस। क्लियर? एंड देन वी आर कम विद योर लास्ट केस दैट इज 1 1। ठीक है, तो अगर आप लास्ट केस में आते हैं 1 1 में, तो क्या होगा, अगर ये दोनों 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये 0 गया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला नया 1। अब इस नए वाले 1 को इनपुट पे लेके आओगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0 फिर गया, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, अगेन 1, इस 1 को दोबारा फिर लेके गए 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स पहले भी 1 0 था और अब भी 1 0 आया। तो उस 1 0 के आने से क्या हुआ, यू कैन केम अंडर इन योर प्रीवियस स्टेट, दैट स्टेट डजंट बी चेंज, it can came under with your no change condition. So that's why that SR latch using NAND gate with proper analysis and done in our today lecture. And that table should be reversed in case of your, if you're designing the same circuit with your NOR gate, only the table changes, that is in which the previous state come at fourth and invalid at first, but in case of your NOR gate that two states are differ, प्रीवियस स्टेट आपकी पहली बन जाएगी और इनवैलिड क्या बन जाएगी, आपकी फोर्थ बन जाएगी, अगर आप उसी को नोर गेट से डिजाइन करते हैं। अगर आपने नैंड गेट से डिजाइन किया एसआर लैच को, तो 0 1 के केस में आपका Q1 आया है, उस केस में यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1, सेम एज फोर, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये पूरी की पूरी टेबल रिवर्स हो जाएगी इन केस ऑफ योर नोर गेट। तो दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन that is a circuit working of your NAND gate and NOR gate with your latch circuit. Clear? Today I will come with the next topic, that is SR latch using NOR gate. Here we mention same, one is SR Q and Q bar, here also SR Q and Q bar. So both the circuits are same, only we can use NOR gate instead of your NAND gate. Clear? And the table is, here we come invalid and previous, first invalid, last previous, in which the first previous and last invalid, in which 1 here and 0 here, and in which 0 here and 1 here. It means both the table to table are reversed to each other in case of your NOR gate. तो जो एनालिसिस मैंने आपकी NAND गेट को करवाने के लिए की है, वही सेम एनालिसिस हम किसके लिए यूज करेंगे, नोर गेट के लिए। मैं आपको कोई भी एक केस करके दिखा देती हूँ, बाकी सारा आपका सेम होगा जैसे मैंने नैंड गेट के अंदर किया है। तो उसमें क्या होगा कि आपने जब यहाँ 0 0 दिया, क्लियर, तो यहाँ मान के चलते हैं ये 1 है, ये 0 है, तो आपकी फर्स्ट इनपुट क्या है 0 0, ये 0 0 0 0, ये 1 ये 0, एज पर दी मेमोरी आपने एक इनपुट इज्यूम करनी होती है पास्ट वैल्यू, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 गया, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 0, यहाँ क्या मिला 1, ये 1 गया इनपुट पे, 1 इंटू 1 प्लस 0 1, यहाँ क्या मिला 0।
इट मीन्स ये 1 है और ये वाला 0 है। प्रीवियस वैल्यू जो मानी थी वही आपकी दोबारा से फिर आ गई, लेकिन उसको हमने 1 टाइम मोर रोटेट करना होता है। तो 0 दोबारा फिर गया, 0 प्लस 0 0, यहाँ क्या मिला 1। अगेन 1 इनपुट पे गया, 1 प्लस 0 1, यहाँ क्या मिला 1। क्लियर? 1 प्लस 1 1, यहाँ आपका 1 आया है, 1 प्लस 1 1 और यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स ये वाला 1 और ये वाला 0। इट मीन्स एक बार प्रीवियस से घुमाया, प्रीवियस से घुमाने पर जो नई आउटपुट आई उसको दोबारा फिर रोटेट किया, देन आपका फिर दोबारा ये वाला 1 और ये वाला क्या आया 0 आया। इट मीन्स नो चेंज। आपने पहले भी 1 0 माना था, घुमाने के बाद भी आपका क्या आया 1 0 आया। इट मीन्स नो चेंज अकर इन दैट केस। सो ऑल ऑफ द रिमेनिंग केसेस analysis as per my assumption that will be discussed in my previous NAND gate discussion, how the input value rotate and it can came the new value at the output, you can say future value at the output, that is qn plus 1 and qn plus 1 bar. Clear? An application of latch is SR latch is used to emulate the switch bouncing. Bouncing means vibration of switches when on or off. Again, we study the SR flip-flop with your NAND gate, and the same analysis is done in case of your NAND gate. So here the circuit, that circuit that is same as your SR latch, but one extra circuit here we mounted, that is two more two more NAND gate. तो मैंने दो NAND gate और ऐड किए हैं। उस पे एक तो हमने इनपुट मान ली एस और आर, दूसरे पे मैंने क्या मान लिया आपकी क्लॉक मान लिया। क्लियर? तो मैंने वही बोला था कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या फर्क होता है कि इसमें हम क्लॉक अप्लाई करते हैं, उस केस में क्लॉक नहीं थी आपकी लैच के अंदर। ठीक है? इसमें क्या आपकी क्लॉक अप्लाई की हुई है, उस क्लॉक को अप्लाई करने के लिए आपने दो नैंड गेट इनपुट पे और इंसर्ट कर दिए। क्लियर? तो आपने वही सेम चीज इट मीन इसमें क्या होगा, जो आउटपुट है, अगर क्लॉक क्लॉक क्या होती है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पल्सेस। इट मीन जब आप क्लॉक जनरेटर को एक बार अटैच कर देंगे, जनरेटर इटसेल्फ अपनी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पल्सेस को जनरेट करता रहेगा। इट मीन उसका सीक्वेंस हर बार चेंज होगा, फ्रॉम 0 to 1 1 to 0, 0 to 1 1 to 0। सो इस क्लॉक की हेल्प से अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट पे कोई भी चेंज हो रहा है, उस तो आपकी ये एस और आर उसके अकॉर्डिंगली क्या होंगी, चेंज होंगी। इट मीन्स योर इनपुट एस आर चेंज अकॉर्डिंगली और विद रेफरेंस टू योर क्लॉक। अगर इनपुट पे चेंज आ रहा है तो आपका आउटपुट पे भी क्या आएगा, चेंज आएगा, जो कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में नहीं हो रहा था। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक प्रेजेंट नहीं थी, तो आपकी जो आउटपुट है वो तब तक उसी स्टेट पे रहेगी जब तक इनपुट पे कोई चेंज अकर नहीं हो जाता। क्लियर? ठीक है? तो हमने क्या किया, क्लॉक को 0 माना है फर्स्ट केस के अंदर। अब इसके अंदर आगे बबल नहीं लगा हुआ, तो इट मीन्स क्या है, क्लॉक आपकी पॉजिटिव एज ट्रिगर है। दो तरह की क्लॉक होती है, वन इज कॉल्ड योर पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड अदर वन इज कॉल्ड योर नेगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव एज ट्रिगर में आपकी आउटपुट चेंज होगी विद रेफरेंस, आउटपुट जो चेंज होगी वो आपकी 0 से 1 पे होगी। ठीक है? और नेगेटिव में आपकी आउटपुट कब चेंज होगी, फ्रॉम 1 to 0 पे। तो अगर आप एक्चुअली में हम पॉजिटिव लॉजिक मान के चलते हैं, तो एज पर दी पॉजिटिव लॉजिक जब आपने क्लॉक को 0 दिया और एसआर पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो जो उसकी प्रीवियस मेमोरी एलिमेंट पे आउटपुट पड़ी होगी, अगर ये 1 है ये 0 मान के चल रहे हो, तो वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक आप इनपुट पे कुछ ना कुछ इनपुट अप्लाई नहीं कर देते। क्लियर? उस टाइम में आपने क्लॉक को क्या किया हुआ है, 0 किया हुआ है। और जैसे ही क्लॉक आपकी 1 होगी, क्योंकि क्लॉक के आगे बबल नहीं लगा हुआ, इट मीन्स दैट विल बी केम अंडर विद योर पॉजिटिव लॉजिक। क्लॉक 1 है, फर्स्ट केस आपने अप्लाई किया 0 0, बोथ क्या है 0 0 है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपका क्यू एन मतलब कि प्रीवियस स्टेट, आप प्रीवियस क्यू एन क्या है, क्यू एन आप यहाँ पे क्यू एन मान के चल रहे थे, आपकी जो भी प्रीवियस स्टेट पे पड़ा होगा वही का वही आउटपुट पे आएगा, नो चेंज अकर इन दैट केस। क्लियर? ठीक है? तो हम इसको एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। क्लॉक आपकी 1 है, दोनों एस और आर 0 0 है, तो 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1। क्लियर? अगेन 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। अब रिमेंबर दिस थिंग कि फर्स्ट इनपुट पे आपको यहाँ क्या मिला है, दोनों 1 1 मिले हैं, ये भी 1 है ये भी 1 है। यहाँ मैंने मान लिया ये 1 है और ये वाला 0 है, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट मान के चलनी पड़ेगी एज पर दी लैच सर्किट। तो अगर ये 0 है, यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्रेजेंट 1 है, यहाँ पे भी क्या था 1 था, ये 0 आपके इनपुट पे गया, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए, तो इन केसेस को एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर? मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, क्लॉक आपकी 1 थी, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग आपके दोनों 0 हैं, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1। ठीक है? 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला
1, दोनों 1 है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये अब मान के चलते हैं एज पर दी लैच सर्किट, ये 1 ये 0, 0 गोज टू योर इनपुट, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, न्यू आउटपुट क्या आई आपकी 1। अब ये न्यू आउटपुट इनपुट पे जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स एक बार प्रीवियस वैल्यू को रोटेट करने के बाद यहाँ 1 आया, यहाँ 0। रिमेंबर दीज थिंग वेरी एक्यूरेटली, आपने पास्ट वैल्यू की हेल्प से न्यू वैल्यू निकाली है, ये 1 और ये 0। जब इसको 1 टाइम दोबारा रोटेट करेंगे तो आपकी क्यू एन प्लस 1 क्या आएगी, ये 1 है और ये 0 है, तो 0 गया, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, ये 1 गया इनपुट पे, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0, क्या मिला, ये 1 था, ये 0 था। जब आपने यहाँ 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, दोबारा से फिर बता रही हूँ, इसको करने के बाद इन दोनों केसेस में यहाँ 1 आया है, ये 0 है, 0 गया, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, ये गया 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स ये 1 है, ये 0 है। दोबारा से फिर 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, अगेन 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। इट मीन्स पहले भी 1 0 था, अब भी 1 0 आया। इट मीन्स इसमें प्रीवियस स्टेट पे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट प्रीवियस स्टेट इज कॉल्ड योर क्यू एन, सेम एज योर दैट केस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब आप ध्यान रखना, इस चीज को समझने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आपकी क्लॉक 1 है और सेट पे आपने 0 अप्लाई किया हुआ है, सेट 0 है, इट मीन सेट तो अप्लाई हो ही नहीं रहा। अगर सेट 0 है तो क्यू एन प्लस 1, आउटपुट क्या आएगी 0 आएगी। अगर सेट 1 है तभी आउटपुट क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो आप इनमें से किसी एक केस का एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरा केस आपका सेम की सेम तरीके से एनालिसिस होगा। तो मैं एक केस को करके दिखा रही हूँ आपको। दैट इज, आपने क्या किया, दोनों को 0 अब सेकंड केस, सॉरी, दैट इज क्लॉक 1 है, ये 0 है, ये 1 है, इट मीन्स रीसेट 1 है, रीसेट 1 है, सॉरी, और सेट 0 है। तो सेट 0 है, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0। अब ये चीज को ध्यान से रखना, ये 1 है, ये 0 है, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, ये 1 है, ये 0 है। हम इसको मान के चलते हैं, ये 1 ये 0, ये भी क्या है, ये 1 और ये 0, ये 0 गया, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, नया वैल्यू क्या आया 1, 1 को दोबारा लेके गए, 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। दोनों 1 आ रहे हैं जब आपका ये 1 है और ये वाला 0 है। दोबारा फिर घुमाइए, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0, अगेन 0 इंटू 0, यहाँ क्या मिला 1। तो क्या हुआ, उसका उल्टा आया। इट मीन्स जब रीसेट 1 था तो क्यू क्या आया आपका 1 आया है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाएंगे तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर, मैं थर्ड केस भी करके दिखा रही हूँ। तो क्या किया आपने, क्लॉक को 1 रखा, ये क्या है, आप सेट 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या मिला 0, 1 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिला 1। ठीक है, इट मीन्स यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 1, ये उसका उल्टा 1 0 0, ये 0 है तो ये वाला क्या होगा, 0 इंटू 0 0, यहाँ क्या मिलेगा 1, ये 1 यहाँ पे गया, ठीक है जी। तो 1 इंटू यहाँ क्या प्रेजेंट है, आर पे क्या था आपका, आर पे क्या था 0, और क्लॉक क्या थी 1, 0 इंटू 1 0, यहाँ क्या मिला 1, ठीक है जी। तो आप इस केस को एज पर द प्रीवियस केस एनालिसिस करके देखिए, आपका ये चीजें एनालिसिस हो जाएंगी। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो अगेन 1 1 पे क्या आएगा, 1 1 पे आपका दोनों स्टेट क्या आ जाएंगी, उसी तरीके से एनालिसिस करने पर इनवैलिड आएंगी। ठीक है जी। तो क्या किया, इस टेबल को याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, 0 0 पे आपका प्रीवियस स्टेट आया, अगर सेट 0 था तो आउटपुट 0 आई, सेट 1 है तो आउटपुट 1 आई, 1 1 पे क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। अगर मैं इसी सर्किट को नोर गेट से बनाना चाहूँ, किससे बनाना चाहूँ, नोर गेट से, तो भी वो सर्किट वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नैंड गेट से काम कर रहा है, ओनली कुछ रीडिंग्स डिफर हो जाएंगी। वही सेम, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आ रही है तो यहाँ इनवैलिड हो जाएगी, और जहाँ इनवैलिड आ रही है वहाँ क्या हो जाएगी आपकी प्रीवियस स्टेट। क्लियर, सेकंड थिंग, जहाँ 0 1 पे 0 आ रहा है यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप उसी सर्किट को, ऐसा फ्लिप फ्लॉप को जैसे आपने नैंड गेट से बनाया है वैसे आप किससे बना सकते हैं, नोर गेट से बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इस चीज के अंदर डाउट लगता है
तो आप एक बार इसको घर पे करके देखिए। एज पर माई एनालिसिस कुछ नहीं करना है, आपने एक बार इनपुट को एज्यूम करना है, उसको फर्स्ट टाइम रोटेट करने के बाद जो आउटपुट आएंगी उनको दोबारा से फिर वन टाइम घुमाना है। घुमाने के बाद जो न्यू आउटपुट आएंगी दैट शुड बी बिहेव एज एन क्यू एन प्लस वन एंड क्यू एन प्लस वन बार, वही आपकी फाइनल आउटपुट क्या की जाएगी, कंसिडर की जाएगी। ध्यान से सुनिए, आपने क्लॉक माना वन, जो भी केसेस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मानते जाइए। एक बार प्रीवियस आउटपुट जो भी है उसको वन टाइम घुमाएंगे, उनको वन टाइम घुमाने से जो न्यू आउटपुट आएगी उसको सेकेंड टाइम दोबारा फिर एनालिसिस में लेके आएंगे फॉर गेनिंग योर क्यू एन प्लस वन एंड क्यू एन प्लस वन बार। ठीक है जी। तो जो सेकेंड टाइम घुमाने के बाद जो आउटपुट आएगी दैट विल बी कंसिडर एज योर फाइनल आउटपुट एज पर ट्रूथ टेबल एनालिसिस। क्लियर? तो आपको एक बार घर पे जाके इसको करके देखिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर माय लेक्चर। अगर आपको डाउट लगता है तो फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको बता देती हूँ कि क्या बनते हैं। या तो आपको लैच आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लैच, या व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिप फ्लॉप, दो नंबर के अंदर। या फिर आप किसी भी सर्किट की जैसे एस आर लैच के एनालिसिस या एस आर यूजिंग नैंड गेट करनी है, एस आर लैच के एनालिसिस यूजिंग नॉर गेट करनी है, या आपने प्रॉपर केसेस को करके दिखाना है, तो इसमें हम केस 1 2 3 को प्रॉपर जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से आप थ्योरेटिकली उस चीज को करके दिखाएंगे कि कैसे आपकी आउटपुट जो है वो एज पर द ट्रूथ टेबल आपकी मैच हो रही है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आप इसको घर जाके स्टडी करिए। फिर भी कुछ रहता है डाउट तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।